This top five most common security issue and how to face them. Top most common security issues means we talk about all the issues regarding the networks and regarding the system. Okay, five most common security issues there. When we talk about the issues, it means we talk about the internet issues. We talk about the when on uploading, downloading some data over the internet. Then how the attacker attack on my data and on your data and on computer data, and then damage and destroy all the data. Okay, so basically we talk about the security, how to secure our data from the unauthorized person attacker, and how to attacker attack on that particular data and system data and device data and the laptop and computer data. Okay, so first we these five name we have just discussed the what is name and what is definition of that name and what is type of this name. Okay, after that we are discuss about the coding. After that we are discuss about the how to inject the attacker code in our web pages in system and data. Okay, first code is code injection. The hacker are sometimes able to exploit. कोड इंजेक्शन मतलब होता है कि अटैकर जो होता है वो कोड इंजेक्ट कर देता है आपके उस पर्टिकुलर वेब पेज या साइट पे, और जब भी उसको आप विजिट करते हो या देखते हो तो वो क्या करता है उसको एक्सप्लॉइट कर देता है, एक्टिवेट मोड में कर देता है, जिसकी वजह से डेटा सारा क्या होता है लॉस हो जाता है. वेनेबिलिटी इन एप्लीकेशन टू इंसर्ट द मैलिशियस कोड, और साथ साथ मैलिशियस कोड को वो इंजेक्ट कर देता है वहां पर. ठीक है, सेकेंड थिंग है तुम्हारा कोड ब्रीच. द कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीचेस इज विल बी डॉक्यूमेंटेड. जो कोड ब्रीच क्या होता है बताऊंगी मैं भी आगे क्या होता है. फिर थर्ड है आपका मालवेयर इन्फेक्शन. फोर्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विसेज अटैक. एंड फिफ्थ है आपका मैलिशियस इनसाइड. वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, देखेंगे क्या होता है, कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं. आपका है कोड इंजेक्शन. लिखा है कोड इंजेक्शन इज अ जनरल टर्म फॉर attacks type which consists of injecting code that is the interrupted executed by the applications. What is mean of that line and what is this sentence give us? This sentence is also talk about the code and talk about the executions and talk about the injecting. Injection, injecting. Okay, injection when we go to hospital and doctor just inject you, इंजेक्शन लगाता है आपको. जब बेबी का क्या करता है कुछ आपके अंदर इंसर्ट करता है, कुछ जो दवा होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसको क्या करता है वो आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, देता है आपको ताकि आप जल्दी बूस्टअप हो जाओ, सही हो जाओ. ऐसे ही अटैकर क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं कोड को, मतलब आपके उस पर्टिकुलर पेजेस पे या पर्टिकुलर साइट पे जो कोड होते हैं जो आप एक्सेस करते हो, वेब पेजेस जो आप डेटा एक्सेस करते हो ऑनलाइन या कोई फाइल एक्सेस करते हो ऑनलाइन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेजेस, कुछ भी आप एक्सेस करते हो ऑनलाइन, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ वो कोड को इंजेक्ट कर देता है. कोड इंजेक्ट मतलब क्या होता है, हो सकता है वायरस, हो सकता है वॉर्म, हो सकता है कोई ऐसी खतरनाक चीज हो जो हमारे सिस्टम हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय डैमेज कर दे. ठीक है ना. This type of attack is exploit the poor handling of the untrusted data. क्या करता है अटैक, जितने भी आपके डेटाज होते हैं अनट्रस्टेड डेटा उसको क्या करता है एक्सप्लॉइट कर देता है. These type of attacks are usually made possible to due to lack of the proper input output data validations. क्या होता है ये कब होता है, ये कब होता है जब आपका प्रॉपर इनपुट और प्रॉपर आउटपुट आपको नहीं मिलता. व्हाट इज मीन ऑफ द प्रॉपर इनपुट एंड प्रॉपर आउटपुट एंड डेटा वैलिडेशंस. When it's the data input, it means when we are input any type any kind of data like string, like a sentence, like a word, like a command form, like anything, you just put the input using the keyboard in the system and output take that the addition of two numbers, the multiplication of two numbers. It means some data you want to display on system, you want to display some data related to system and you want to execute the data on your system. Then we are when we are just put the lots of the input. Okay, when we talk about the basic computer program, we have a lots of keys used in this program like a studio file, call file. ठीक है ना. आपके वर्ड में सारे होते हैं जितने भी फंक्शंस होते हैं जिसको आप कीबोर्ड के थ्रू यूज करते हो. तो हम लोग क्या करते हैं वो कीबोर्ड का यूज करके उसको इनपुट देते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं हम लोग, और जैसे प्रोग्राम बनता है वो एग्जीक्यूट होता है हमें आउटपुट मिल जाता है. बेसिकली ये होता है, लेकिन अगर इनपुट ही गलत होगा आउटपुट क्या होगा आपका गलत होगा. एंड व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेशन मीन्स चेक करना. एग्जीक्यूशन जब करते हैं हम लोग
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, हम चेक कराते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो सही से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। अलाउ कैरेक्टर, स्टैंडर्ड, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्लासेस और कस्टम, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। फिर लिखा डेटा फॉर्मेट अमाउंट द एक्सपेक्टेड डेटा, द कोड इंजेक्शन डिफर फ्रॉम द कमांड इंजेक्शंस in that an attacker is only limited by the functionality of the injected language itself. If an attacker is able to inject PHP code into an application and have it executed, they are only limited by what PHP is capable of. Command injection consists of leveraging existing code to execute the commands usually within the context of the cell. बोल ही रहा है कि जो भी आपका कोड इंजेक्शन होता है वो अलग होता है, कमांड इंजेक्शन अलग। कमांड इंजेक्शन में क्या होता है, हम लोग चीज़ों को कोड के थ्रू क्या करते हैं, कमांड भी रखते हैं उस पर, इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। एक लिमिट ऑफ ड्यूरेशन के लिए क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद अपने आप को डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाता है। ठीक है ना। तो बोले जो कॉन्टेक्स्ट होता है, बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल होता है उस पर क्या करते हैं, कमांड ऑफ इंजेक्शन इफेक्ट डालता है। लेकिन जो कोड इंजेक्शन होता है बेसिकली आपके इनपुट आउटपुट पर डिपेंड करता है। अगर आपका इनपुट सही नहीं है तो आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा। इसी का फायदा है कोड इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना, फायदा उठाते हैं अटैकर जो भी होते हैं। ठीक है। Next, risk factor. This type of vulnerabilities can range from the hard to find to easy to find. If found, are usually moderate, hard exploit depending on scenario. If successfully exploited, impact could cover the loss of the confidentiality, loss of the integrity, loss of the availability, and or loss of the accountability. बोल रहा है कि अगर आपका इंजेक्शन कोई सी अटैकर ने इंजेक्ट किया, कोई भी कोड ऐसे डिफेक्टेड कोड इंजेक्ट कर दिया या वायरस या वॉर्म कुछ इंजेक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपके डेटा की जो जो वो सक्सेसफुली आपके सिस्टम में, आपके पेज पे, आपको साइट पे एक्सप्लॉइट हो गया, तो क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हो जाएगी, आपकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, आपके डेटा की अवेलेबिलिटी भी लॉस हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी भी आपके डेटा की लॉस हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही हार्ड होता है इसको फाइंड आउट करना, बहुत इसके लिए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको एग्जांपल देख लीजिए कैसे होता है, देखिएगा। इफ एन एप्लीकेशन ऑफ द पासेस ऑफ पैरामीटर्स सेंड बाय द गेट रिक्वेस्ट टू द पीएचपी इंक्लूड फंक्शन विद नो इनपुट वैलिडेशन, ऑब्वियस बात, मैंने कोई इसको इनपुट नहीं दिया, द अटैकर मे ट्राई टू एग्जीक्यूट कोड अदर देन व्हाट द डेवलपर हैड इन माइंड। क्या करेगा अटैकर, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा या सोचेगा कि क्या डेवलपर के माइंड में आ सकता है, उसने ऐसा क्यों किया। The URL below passes the page's name of the including functions. आप इसमें चेक कर लीजिएगा। The file of the evil code PHP may contain, for example, the PHP info function, which is the useful for the gaining the information about the configuration of environment in which the web services run. An attacker can ask the application execute their PHP code using the following request. क्या बोल रहा है, PHP का यूज है, किसी भी डेवलपर ने डेवलप किया है पेज को, तो PHP के कोड को हम, वो भी अनट्रस्टेड पार्टीज होती है, अनट्रस्टेड डेटा होती हैं, अटैकर होते हैं, हम क्या करते हैं, इजीली उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें कुछ कोड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके पूरे कोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो वैलिडेट भी क्या होता है, हो जाता है। इसी वजह से हम पता नहीं लगा पाते हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर पेज पे इन्फेक्टेड पेज है भी कि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच होता है, डेटा ब्रीच इज द इंटेंशनल और अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ सिक्योर और प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू एन untrusted environment. Other terms for this phenomena include the unintentionally information disclosed, data leak, information leakage, and also data spill. The incident ranged from the concurrent attack by the black hats or individual who hack for some kind of personal gain associated with organized crime, political activity, national government, or the careless the disposal of use the computer equipment and data storage, media and the unbreakable sources. लिखा है डेटा ब्रीच मतलब क्या होता है, डेटा ब्रीच मतलब होता है डेटा को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना। ब्रीच मतलब होता है इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली किसी भी डेटा को आप एक अनट्रस्टेड इन्वायरमेंट में आप पब्लिश कर रहे हो या उसको सबको दिखा रहे हो या खुद यूज कर रहे हो। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं ब्रीचिंग करना होता है। ठीक है। ब्रीचिंग जो होता है दो तरह का होता है, इंटेंशनली भी और नॉन इंटेंशनली भी। इंटेंशनली मतलब होता है कि आप जानबूझकर डेटा शो कर रहे हो ताकि आपके अगल बगल जो लोग हैं वो देख रहे हैं उस डेटा को और उसको समझ जाए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। एक होता है कि आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके अगल बगल कौन है, कोई आपके डेटा को देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, और उसके बाद आपने किया। तो एक इंटेंशनली मतलब आप जानबूझकर डिस्क्लोज करना चाह रहे थे, एक अनजाने में डिस्क्लोज चीजें हो गई।
इसी को बोलते हैं डेटा ब्रीच करना, ठीक है। डेटा को इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली स्प्लिट करना इन्वॉल्वमेंट में, या किसी को बताना, ठीक है ना। फिर लिखा है इंडिविजुअली हु हैक फॉर सम काइंड ऑफ पर्सनल गेन। बहुत लोग इसको हैक करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं क्राइम, पॉलिटिकल एक्टिविटी, नेशनल गवर्नमेंट, कंप्यूटर, डाटा स्टोरेज, मीडिया, ये सब सारी चीज़ क्या होती हैं, पब्लिकली अब कोई भी अटैकर यूज करता है ताकि डेटा को एक्सेस कर सके और चुरा सके। लिखा है डिफिनेशन में, अ डेटा ब्रीच इज अ सिक्योरिटी वॉलेंट इन विच sensitive, protect or confidential data is copied and transmitted, view is stolen or used by individual unauthorized to do. The data breach may involve the financial information such as credit card or bank details, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि ब्रीचिंग मतलब क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटी पर्पज से हम डेटा को सिक्योर करते हैं, सेव करते हैं, उसकी उसी को क्या करता है, कॉपी फॉर्म बना लेता है, फिर उसको ट्रांसमिट करता है और देखता है, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन क्या करता है, हमारे उस पर्टिकुलर डेटा का कॉपी बनाने के बाद उसका मिसयूज करता है। जैसे क्रेडिट कार्ड डेटा हो गया, बैंक डिटेल डेटा हो गया, ठीक है ना। जो भी डेटा आपके होते हैं वो क्या करता है, उसको एक्सप्लॉइट कर देता है, या फाइल के फॉर्म में हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, जितने भी सेंसिटिव डेटा होते हैं उन सबको क्या करता है, वो अनट्रस्टेड पार्टीज या अनसाइड पर्सन जो होता है एक्सेस कर लेता है, एक्सेस करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय, डैमेज कर देता है, ठीक है। Data breach may include the incident such as often or loss or digital media such as computer tab, hard drive, or laptop computer containing such a media upon which such information is stored or unencrypted. Posting such information on the worldwide or on a computer otherwise accessible from the internet without the proper information security precautions. The transfer of such information to a system which is not a completely upon but is not appropriately or probably accidentally for security at the approval level, such as the unencrypted email transfer of such information to the information system of a possible hostile agency, such as the competing cooperative or the foreign actions, where it may be exposed to more intensive or decryption technique. ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल ही रहा है कि जो भी आपका डेटा ब्रीचिंग होता है, वो हम लोग जब भी सिस्टम में डेटा रखते हैं, ठीक है, आप खुद देखते होगे, जो हमारे सिस्टम में डेटाज होते हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे वो कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज हो, चाहे फाइल हो, वो हमेशा हमें किस फॉर्म मिलती है, एक डिक्रिप्ट फॉर्म मिलती है। मतलब हम कोड को क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करके अपने सिस्टम में रखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली डेटा ब्रीचिंग क्या करता है, उसी डेटा पे वो अटैक करता है, एक अनट्रस्टेड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उसके बाद आपके डेटा को एक्सेस करता है कंप्लीट तरीके से और उसको डिस्ट्रॉय, डैमेज करता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डेटा ब्रीचिंग करना। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विसेज अटैक, ये बता चुकी हूँ आपको पहले भी। लिखा हुआ है टारगेट वेबसाइट एंड ऑनलाइन सर्विसेज। बेसिकली इसका टारगेट क्या होता है, वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं। द एम ऑफ द ओवरव्यू them with more traffic than the server or network can accommodate it. The goal is to render the website or services improbable. In some cases, the target victim are the threatened with the DOS attack or attacker is low level. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ये होता है कि जो भी आपका, मैंने बताया डिनाल सर्विसेज क्या होता है, डिनाल सर्विसेज का मतलब ये होता है जो भी अटैक होता है सिस्टम पे या नेटवर्क पे अटैक होता है, उस अटैक में कोई भी अटैकर अगर अटैक करता है और क्लेम किसी ऑथेंटिकेटेड यूजर पे जाता है, तो यूजर इस बात से डिनाई कर सकता है कि मैंने ये जो भी आपका अटैक हुआ है, डेटा लॉस हुआ, मैंने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है इस बात की इंश्योरिटी दे देती है कि ये ऑथेंटिकेट यूजर ने नहीं किया, ये किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेस किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज किया है या कोई क्राइम किया है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज अटैक, ठीक है। नेक्स्ट आपका मालवेयर इन्फेक्शन। लिखा है malware infection occur when the malware or malicious software infiltrated your computer. Malware is type of the software created with the internet damage the victims and computers. They're stealing the private information or spying on a computer without the consent of the user. बोल ही रहा है कि जो मालवेयर इन्फेक्शन होते हैं हमारे पास, वो मालवेयर मतलब क्या होता है, इन्फेक्टेड कोड बोल सकते हो आप, या फिर कोई वायरस या बॉम्ब बोल सकते हो, जो आपके सिस्टम को, जो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करे, डैमेज करने की कोशिश करे, चुराए इसको, और साथ साथ उसका मिसयूज करने की भी कोशिश करे, उसको बोलते हैं मालवेयर इन्फेक्शन, ठीक है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड देख लो बार। Distributed denial services attack target the website and online services. The aim of the overview for traffic then the server network commander. The goal of render the website services improbable. The traffic can consist of incoming messages, requests for the connecting for fake packets. In some cases, the target victim the threatened with a DOS attack, an attacker at low
level. This may be combined with extortion threat to more the devastating attack unless the company pay the cryptocurrency ransom. The criminal group called the Amrit Collective respective export bank web host provider and the other इन दिस वे बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक जो होता है रैपिड अटैक बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इनोसेंट पर्सन को फंसा के ठीक है इनोसेंट पर्सन जो कम्युनिकेट कर रहा था डेटा को ट्रांसफर कर रहा था जो किसी से अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज शेयर कर रहा था उसको ये टारगेट बनाते हैं बेसिकली उसके बाद उस साइट के थ्रू एक फेक पैकेट या फेक मैसेज सेंड करते हैं जिसके फेक मैसेज सेंड होता है रिसीव होता है उसका रिस्पॉन्स जैसे ही आना शुरू हो जाता है वो उससे एज अ इनोसेंट यूजर बनकर कम्युनिकेट करते हैं और डेटा को डैमेज या डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर क्राइम जो करना तो क्राइम को अटैम्प करते हैं मेलिशियस इंसाइडर क्या होता है लिखा है मेलिशियस इंसाइडर कैन एम्प्लॉय ऑब्वियसली मैंने बताया था आप लोगों को कि मेलिशियस इंसाइडर मतलब होता है कि ऐसा एम्प्लॉय जो आपके साथ बैठा हुआ है आपके साथ वर्क कर रहा है काम कर रहा है और वो किसी और मोटिव से है उसका मोटिव क्या है यहाँ के डिटेल को शेयर करना यहाँ के डिटेल को आउटसाइड जाकर बताना यहाँ पे क्या हो रहा है वो बाहर जाके बताने मतलब बेसिकली वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो आपका बंदा है आपका एम्प्लॉई बट वो काम क्या कर रहा है आउटसाइडर के लिए काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं मेलिशियस इंसाइडर जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं इनके बारे में पता लगाना इनके बारे में समझना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इनका पहनना खाना पीना रहना सब कुछ हमारे जैसा ही होता है इसलिए उसको स्पाई भी बोलते हैं जो स्पाई होते हैं अदर कंट्री में वो क्या होते हैं मेलिशियस इंसाइडर होते हैं जो उस कंट्री के नहीं होते हैं हमारे कंट्री के होते हैं हमारे लिए काम करते हैं बट बेसिकली उनको हम ट्रांसपोर्ट किए होते हैं वहाँ भेजे होते हैं इससे उनका मोटिव ये होता है कि वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को गेन करना और हमें प्रोवाइड कराना ताकि हम उससे अकॉर्डिंग कोई सुटेबल एक्शन ले सकें ठीक है ना ये सारी चीजें होती हैं देखिए फिर क्या लिखा है insider threat is a security risk that is originate from the within the target's organizations is a typically involve a current former employee or business associated who has access to sensitive information or privileged account with the network of an organization and who misuse this access बोल रहा है कि जो भी आपका इंसाइडर अटैक में बताया था अभी आपको मैंने इंसाइडर बताया था बेसिकली उनका काम क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फॉर्म में काम करना एज ए एम्प्लॉय और वहाँ के डेटा को एक्सेस करने के बाद हमें हैंड आउट करना हमें देना हैंड ओवर करना ताकि हम उसके लिए कोई भी सुटेबल एक्शन परफॉर्म कर सकें या ले सकें ठीक है ना ठीक है traditional security measure trained to focus on external threat and are not away capable of identifying an internal threat containing from inside the organizations types of insider threat include the malicious insider obviously बात है malicious होता है इसमें और इसके बहुत सारे स्पाई होते हैं आपके ठीक है ना आपके बहुत सारे गाइड किए हुए एम्प्लॉय होते हैं आपके ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उस कंपनी में जाके वर्क करते हैं वर्क करने के बाद आपके अकॉर्डिंग जब भी आप चाहते हो कि वो एक्टिव मोड में आए आपको डेटा दें आपको सेंड करें तब वो एक्टिव मोड में आते हैं और डेटा क्या करते हैं आपको सेंड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है चाहे डेटा लॉस हो सकते हो आप चाहे किसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का लॉस हो सकते हो आप या ट्रस्टेड लॉस हो जाता है ठीक है ना